سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ رب تعالی فرماتا ہے کہ اے بندے، تو میرے بارے میں جیسا گمان کرے گا میں تیرے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں گا۔ تو جیسا میرے بارے میں گمان کرے گا میں تیرے ساتھ ویسا ہی ہوں۔ تو مجھے غفور الرحیم جانے تو یقیناً تو مجھے غفور الرحیم ہی پائے گا، اور اگر تو مجھ سے دوستی کر لے تو پھر تو مجھے اپنا دوست ہی پائے گا۔ حدیث مبارکہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتا ہے۔ اب آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ آپ رب تعالیٰ کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہیں۔ بھئی میں گمان رکھتا ہوں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ سبحان اللہ، بڑی اچھی بات ہے۔ بے شک وہ وحدہ لا شریک ہے، لا متناہی ہے، لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ بھئی میں گمان کرتا ہوں وہ خیر الرازقین ہے، واللہ خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والا۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے میں تیرے رزق میں خیر رکھ دوں گا، خیر والا رزق تجھے عطا کروں گا۔ گمان تو کرے، تصور تو کرے اپنے رب کے بارے میں۔ ہاں، چہرہ مورا شبیہ نہیں بنانی، یہ گمان نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چہرے سے پاک ہے۔ ہاتھ پاؤں کی شبیہ نہیں بنا لینی، تصور نہیں بنا لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ پاؤں ناک منہ آنکھوں سے پاک ہے، وہ ان کا محتاج نہیں، وہ بغیر آنکھوں کے بھی وہ دیکھتا ہے، بغیر کانوں کی وہ سنتا ہے، سمیع البصیر ہے، دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ تو کیسا گمان کریں گے آپ رب کے بارے میں؟ رزق کی بات کر رہا تھا، خیر الرازقین ہے، تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، تو کیا ہمیں پھر رزق کا فکر ہونا چاہیے؟ رزق کا ذمہ تو اس نے خود لے رکھا ہے، اس نے یہ ذمہ خود اٹھا رکھا ہے کہ ہاں بھائی پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک کا تیرا رزق میرے ذمہ، میں تیرا رازق ہوں۔ تو پھر ہم رزق کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہمارا گمان ٹھیک نہیں ہے نا۔ اگر ہم یہ گمان کریں کہ ہاں وہ رازق ہے تو پھر ہمیں رزق کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں محنت مزدوری کریں، اپنے ایفرٹس اپنی کوشش سکلز ضرور ڈالیں، پر رازق اللہ کو جانیں، وہ رزق کا ذمہ دار ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک موت اور ایک رزق انسان کا پیچھا کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، وہ کہیں بھی چلا جائے یہ دونوں چیزیں اس کا پیچھا کرتے 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 جہاں وہ جاتا ہے اس کے پیچھے پہنچ جاتی ہے۔ رزق پہنچتا رہتا ہے اسے جہاں بھی چلا جائے۔ اسی طرح جب وقت موت آتا ہے تو موت پہنچ ہی جاتی ہے، چاہے وہ کہیں بھی پہ ہو۔ اور جو لوگ اللہ والے ہیں، جو اللہ کو دوست رکھتے ہیں، اللہ کہتا ہے وہ میرے دوست ہیں، میرے ولی ہیں، وہ میرے دوست ہیں۔ جو ذاکرین ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کثرت سے اسے یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ مجھے یاد کرتے ہیں، میں ان کو یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں بھی ہم تو مخلوق ہیں، ہم اپنے رب تعالیٰ کا ذکر کریں، بات سمجھ آتی ہے کہ وہ اس شان کے لائق ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے، اس کی عبادت کی جائے، پر وہ رب ہو کر ہمارا ذکر کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر، بس
जैसा भी आप रब ताला के बारे में मान करेंगे, रब ताला वैसा ही है। जाकिरीन के साथ वो बैठ के हम नशीन हो जाता है, जिक्र करता है। हदीस मुबारक है जिसका मफहूम बता रहा हूं कि जब वो अल्लाह अल्लाह कर रहे होते हैं, अल्लाह फरमाते हैं मैं उनका हम नशीन हूं, मैं उनके साथ बैठा होता हूं, उनके साथ बैठ के अल्लाह अल्लाह कर रहा होता हूं। बस आप अपना गुमान तो ठीक करें, गुमान ठीक करें कि मेरा पैदा करने वाला वो है, बेशक वो है। मुझे मौत वही देगा, बेशक वही देगा, उसी की तरफ से मौत आनी है। मेरा राजिक वो है, मेरा पालने वाला वो है, जमीन और आसमान का मालिक वो है, द डे ऑफ जजमेंट का मालिक वो है। गुमान तो करें, जैसा गुमान करेंगे रब ताला आपके साथ वैसा ही मामला फरमाएगा। आप उसे दोस्त बना लें, दोस्त रखना शुरू कर दें, वो आपको दोस्त रखेगा, वो आपके साथ दोस्ती निभाएगा। आप उससे प्यार करना शुरू कर दें, वो आपसे प्यार करेगा। आप उसके कुर्ब के हसूल के लिए मेहनत करें, कोशिश करें, इबादत करें, वो अपना कुर्ब अता फरमाएगा। वो कहता है मैं कहीं नहीं समाता, लेकिन मोमिन के कल्ब में समा जाता हूं। आप गुमान करें कि रोज़े महशर अल्लाह तबारक व तआला मेरा पर्दा रखेगा। अल्लाह फरमाता है मुझे हया है उन लोगों से जो मुझ पर ये गुमान करते हैं कि मैं उनका पर्दा रखूंगा। मुझे उनका हिसाब लेते हुए, उनके हिसाब खोलते हुए हया आती है। अल्लाह पर्दा रखेगा। गुमान करें, अच्छा गुमान करें अपने रब के बारे में। गफूर रहीम जाने उसे, वो माफ कर देगा, वो माफ ही कर देगा। वो मेरी तौबा को कबूल फरमाता है, वो कबूल फरमाएगा। वो मेरी दुआओं को सुनता भी है, कबूल भी फरमाता है। वो दुआओं को फिर सुनता भी है, कबूल भी फरमाता है। वो मेरे जो दिलों में छुपा हुआ है वो भी जानता है, तो यकीनन वो जानता है। आप अपने रब के बारे में जैसा गुमान करेंगे, आपका रब आपके साथ वैसा ही मामला फरमाएगा। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने रब ताला के बारे में अच्छा गुमान करें, अच्छा गुमान करें। कुछ मौलाना हजरात डराते हैं, बड़ा डराते हैं कि भाई रब ताला की गिरफ्त बड़ी सख्त है। भाई वाकई सख्त है, हम मानते हैं, पर हम उससे रहमत के तलबगार हैं। उसकी गिरफ्त से तो डरते हैं हम, उसके गजब से तो डरते हैं हम, उसके कहर से तो डरते हैं हम उसको दोस्तों की तरह देखते हैं कि वो मेरा मेरा दोस्त होगा, मैं अल्लाह का वली हूँगा, तो अल्लाह हमारे साथ दोस्ती निभाएगा। और फिर एक और मेयार दोस्ती का, दोस्त का जो दोस्त होता है वो दोस्त ही होता है, वो दुश्मन नहीं होता। जो दोस्त का दोस्त होता है वो दोस्त ही होता है। चलो भाई, मैं अल्लाह के वलियों की संग लगा हूं, मैं अल्लाह के वलियों की निस्बत में हूं, मैं अल्लाह के वलियों के पीछे 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 चल रहा हूं। तो जब अल्लाह ताला अपने वलियों को नवाजने पे आएगा तो फिर मुझे कमी तो नहीं रहेगी। अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली रात शब बेदारी करते हैं, तस्बीहात मामूलात करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं। अगर कोई झूठा, कोई खोटा, कोई कॉपी कैट यही काम करना शुरू कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके साथ कैसा मामला फरमाएगा। अल्लाह जब अपने सच्चों को बहुत सारे इनाम और इकराम दे रहा होगा, तो मिसाल दे के बात कर रहा हूँ भाई, 99 सच्चे लोग बैठे हुए थे, उनमें एक खोटा एक झूठा भी बैठा हुआ था, बस दिखावा कर रहा था, एक्टिंग ही कर रहा था कि हाँ भाई शब्बेदारी कर रहा हूँ, हाँ भाई मैं तहज्जुद गुजारी कर रहा हूँ। तरीका सलीका उसे नहीं आता था, तो रब ताला उसके साथ क्या मामला फरमाएगा आप बताएं, सोचे। रब कहेगा ये जो सच्चे हैं ना, इनका सदका, इनकी खैरात, ये जो झूठा खोटा है जिसे कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं पढ़ना आता, कुछ भी नहीं करना आता, बस उनकी नकल करते हुए ये भी बैठा हुआ है सर झुका के,
ये मेरे सच्चों की नकल करते हुए, उनको कॉपी करते हुए ये भी मेरी बारगाह में तहज्जुद गुजारी कर रहा है, आती जाती कोई चीज नहीं है इसे, तो अल्लाह उसको भी नवाज देता है कि चल ये मेरे प्यारों की नकल तो कर ही रहा है ना, ये जो मेरे वली हैं, जो मेरे यार हैं, उनकी तरह इसने बहरूप तो बना रखा है ना जी। जो मेरे बरगुजीदा पसंदीदा लोग हैं, उनके उनके पीछे पीछे तो चल ही रहा है ना जी। ये अल्लाह नवाज देता है, याद रखिएगा। आप अल्लाह के बारे में जैसा गुमान करेंगे, अल्लाह आपके साथ वैसा ही मामला फरमाएगा। अगर आप जिक्र करते हुए ये गुमान करें कि मैं अल्लाह अल्लाह कर रहा हूं और मेरा अल्लाह, ये मेरी पुकार, ये मेरा विर्द, ये मेरे औराद, ये मेरे वज़ाइफ, ये मेरा जिक्र करना उसकी बारगाह में पहुंच रहा है और वो सुन रहा है, वो देख रहा है, तो अल्लाह वैसा ही मामला फरमाएगा। अल्लाह पाक आप अमल की तौफीक अता फरमाए। याद रखिएगा, कोई नमाज ना आती हो, किसी को सही तरीके से पढ़नी भी ना आती हो, और वो नमाज में जाके खड़ा हो जाए, नमाज पढ़ने वालों में, जमात में, सफ में खड़ा हो जाए, तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी? पढ़नी तो उसे आती नहीं थी, उसे तो आलम शरीफ भी नहीं आती थी, उसे तो ताहियात यानी तशद भी नहीं आती थी। क्या उसकी नमाज हो जाएगी? यकीनन हो जाएगी। क्यों? वो सफ में शामिल हो गया, वो जमात में उसकी तरफ नहीं देखा जाएगा कि इसकी नमाज नामुकम्मल है, खोटी है, इसकी नमाज इसको पढ़नी भी नहीं आती, इसने कुछ पढ़ा भी नहीं है। नहीं, इसलिए कबूल हो जाएगी क्योंकि वो अल्लाह की बारगाह में क़याम वालों के साथ क़याम कर रहा था, झुकने वालों के साथ झुक रहा था, सजदा रेज़ी करने वालों के साथ सजदा रेज़ी कर रहा था। बस वो इमाम के पीछे अल्लाह अकबर कह के खड़ा हो गया, बस इतना ही काफी था कि वो मौजूद था वहां पे, वो उस सफ में शुमार हो गया, गिन लिया गया कि हाँ भाई ये भी नमाजियों में खड़ा है। तो अपने रब के बारे में अच्छा गुमान करें, और जो रब ताला के बरगुजीदा बंदे हैं उनके नक्शे कदम पर चलें, नक्शे कदम पर चलें। लिहाजा जैसा आप अपने रब के बारे में गुमान करेंगे, जैसा अल्लाह वाले करते रहे हैं, वैसे आप करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आप पर भी करम उतरेगा, यकीनन आप पर बहुत बड़ा करम उतरेगा। और ये जो कमियां, कोताहियां, कजरवियां हैं ना, जब उस बारगाह से करम उतरता है तो फिर वो कमियां, कोताहियां, कजरवियां सब दूर हो जाती हैं, सब दूर हो जाती हैं। फिर जो नाकस अमल भी होते हैं ना जी, वो भी मकबूल हो जाते हैं। एक अल्लाह का वली, चलें आखिरी वाक़या फिर उसके बाद जिक्र करते हैं। एक अल्लाह का वली कोई दुकानदार था, या ये समझ लें कोई रेहड़ी वाला था, जैसे अक्सर लोग ठेला लगा लेते हैं, कोई कोई हट बना लेते हैं, इस तरह से। कमजोर था माली एतबार से, फ्रूट और फल का कारोबार करता था वो वली। तो पहले ज़माने में, अब तो खैर वो रवाज नहीं रहा, मैंने अपने बचपन में वो टाइम देखा हुआ है कि कोई खोटा सिक्का होता था ना, जिसके ऊपर कोई स्कार, कोई मार्क लगा होता था, कोई टूटा फूटा होता था, कोई टेढ़ा मेढ़ा होता था, तो वो दुकानदार लेता नहीं था, वापस कर देता, भाई ये खोटा सिक्का है, ले जाओ कोई सही वाला लेके आओ। तो उस बुजुर्ग की ये क्वालिटी थी कि उसके पास कोई खोटा सिक्का भी लेके आ जाता था ना, तो वो उसको खरा जानकर उसको वो सौदा दे देता था, जो भी उसे चाहिए होता था। लोग अक्सर अपने खोटे सिक्के चलाने के लिए उसी के पास सौदा लेने आ जाते थे कि ये बाबा शायद पता नहीं इसको दिखाई सही नहीं पड़ता, इसलिए ले लेता है, या पता नहीं इसको खोटे खरे की पहचान नहीं है, इसलिए ले लेता है। तो लोग अपने खोटे सिक्के उसकी बारगाह में, उसके पास आके, उसकी दुकान पर, उसकी रेहड़ी पर, ठेले पर चला देते थे, सौदा ले लेते थे। जब उस अल्लाह के वली का वक्त आखिर आया तो उसने
अपने घर वालों को एक नसीहत की। उसने कहा भी वो एक थैला पड़ा हुआ है, जब आप मुझे दफन करने लगो ना, तो मेरी कब्र में ये थैला भी रख देना। उसके घर वालों ने कहा हाँ ठीक है जी, रख देते हैं, लेकिन क्या है उसमें? उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं है, बस आप रख देना। वो शायद फैमिली में से किसी की नजर पड़ गई, तो उसने देखा कि वो जितने भी आज तक खोटे सिक्के लोगों से लेता रहा, वो आगे तो कोई लेता नहीं था। तो वो क्या करता था, सारे खोटे सिक्के ना उस थैले में, जो भी खोटा सिक्का, भाई आज एक खोटा सिक्का आ गया रख दिया, आज दो आ गए वो भी रख दिए, भाई कई दिनों के बाद फिर एक आ गया फिर वो भी रख दिए। तो खोटे सिक्के जो थे वो थैले में रखता रहता था। उन्होंने पूछ लिया घर वालों ने कि ये क्या है, खोटे सिक्के हैं और आप कहते हैं मेरी कब्र में देना जब मुझे दफन करो। उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा, क्यों, क्या वजह है? ये कोई कब्र में या कोई साथ ले जाने वाली चीज है जो आप कहते हैं कब्र में रख दो? उस अल्लाह के वली की बात सुनी, वो वली फरमाने लगे कि जब मैं रोजे महशर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होऊंगा तो ये थैला उसकी बारगाह में पेश करूंगा, कहूंगा या रब्बुल इज्जत, मैं तेरी मखलूक के कभी खोटे सिक्के वापस नहीं करता था, कबूल कर लेता था। सारी जिंदगी लोगों के खोटे सिक्के कबूल करता रहा। मेरे अल्लाह, आज मेरी झोली में खोटे अमल हैं, खोटे अमल हैं, कोई खरा कोई सच्चा सुच्चा अमल नहीं है, सब अमाल मेरे खोटे हैं। अल्लाह तू आज मेरे ये खोटे अमाल अपनी बारगाह में कबूल कर लेना। तो मैं अल्लाह के बारे में ये गुमान रखता हूं कि मेरा रब मेरे खोटे अमाल भी अपनी बारगाह में कबूल कर लेगा। इससे सबक ये मिलता है कि हम अपने रब के बारे में जैसा गुमान करेंगे, रब ताला हमारे साथ वैसा ही मामला फरमाएगा। अपने रब के लिए अच्छा गुमान किया करें। जितना अच्छा गुमान करेंगे, आपका रब आपके साथ उतना ही अच्छा मामला फरमाएगा। अल्लाह पाक आपके और मेरे तमाम नेक नियति से, खैर और भलाई की नियत से के किए गए सारे कबूल फरमाए और हमारे साथ गफूरुर रहीम होने वाला मामला फरमाए। अल्लाह की तौफीक अता फरमाए जी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लि अलैहि। अपने हाथ सीने के बराबर जरूर बुलंद कर लें, जुबान हिलाकर, लब हिलाकर आमीन जरूर कहिएगा मेरे पीछे। अगर जमीन पर बैठे हैं तो दो जानू होकर बैठ जाएं, अत्तहियात की शक्ल में, तशद की शक्ल में दो जानू होकर बैठ जाएं। ये बेहतरीन तरीका है अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगने का। दो जानू होकर बैठना, हाथ सीने के बराबर बुलंद करना। अगर ऊपर भी उठ जाए कोई बात नहीं, लेकिन सीने से नीचे नहीं होने चाहिए। और लब हिलाकर, जुबान हिलाकर आमीन कहना है। आहिस्ता आवाज में, नॉर्मल आवाज में कहें, बहुत अच्छा है। अगर बुलंद भी हो जाए किसी लम्हे तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप दिल ही दिल में कहें, खामोशी से कहें, नहीं, में ज्यादा फजीलत है। अल्लाह पाक हमें हमारी सारी दुआओं को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लि अलैहि। या रब्बुल आलमीन, आज तक जितनी भी दुआएं मांगी सब अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमारे अंदर बड़ी कमियां कजरवियां हैं, कोताहियां सुस्तियां कर जाते हैं, अपने करम से माफ फरमाते हुए अल्लाह हमारी तमाम दुआओं को शर्फ कबूलियत अता फरमा, तमाम इल्तिजाओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा।
हमारी तमाम हाजतों को अपनी हमारी तौबा बारगाह में सच्ची करके कबूल फरमा। अल्लाह जो भी आज तक मांगा अता फरमा दे। बेशक कोई चीज तेरे कब्जाए कुदरत से बाहर नहीं जो हमने मांगी हो। अल्लाह हम सबको दीन और दुनिया की भलाई अता फरमा, दुनिया और आखिरत की कामयाबियां अता फरमा। जमीन व आसमान में मौजूद हर चीज के शर से अल्लाह तेरी पनाह मांगते हैं, हमें अपनी अमान व पनाह अता फरमा, अपना फक्र अता फरमा, अपना तवक्कल अता फरमा, अपनी मार्फत अता फरमा। अल्लाह हमें सब्र और शुक्र अता फरमा। सब कुछ दिया है तूने, दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्तकामत अता फरमा। या रब्बुल आलमीन हमें सराते मुस्तकीम पर कारबंद फरमा। अल्लाह इनाम याफ्ता लोगों में हमारा शुमार फरमा, साबरीन में हमारा शुमार फरमा, शाकरीन में हमारा शुमार फरमा, जाहिदो आबिदों में हमारा शुमार फरमा। या अल्लाह अपने मुत्तकी और परहेजगारों में हमारा शुमार फरमा, जाकरीन में, जिक्र करने वालों में, तेरा नाम पुकारते रहने वालों में हमारा शुमार हो, ऐसा करम अता फरमा। हमारी जबीनें तेरी बारगाह में सजदों की हलावत पा जाएं, ऐसा करम अता फरमा। अल्लाह हमें अपना कुर्ब अता फरमा, इश्क मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा। या अल्लाह हर खैर और भलाई और कामयाबी वाले कामों में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा, हर बुराई, गंदगी और गुनाहों से बचने की हमें तौफीक अता फरमा कि बेशक सब तौफीकें तेरी बारगाह से हैं। नेकी करने की तौफीक और बुराई से बचने की ताकत नहीं मगर अल्लाह जिसे तू दे। अल्लाह हम पर अपना करम अता फरमा, हमें खैर भलाई की तौफीक अता फरमा, हमारी महफिलों को पाक फरमा दे, हमारी तन्हाइयों को पाक फरमा दे। अल्लाह खैर वाला रिज़्क अता फरमा दे, दराज़ी उम्र अच्छी सेहत के साथ अता फरमा दे, दीन और दुनिया के बेहतरीन अलूम अता फरमा, हसूल रिज़्क आसान फरमा दे। अल्लाह हमारे आबाओ अजदाद और हमारी औलादों नस्लों के सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा दे। अल्लाह जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा दे, जो तंग दस्त हैं उनकी तंग दस्तियां दूर फरमा दे, जो मकरूज हैं उन्हें कर्जों से खलासी अता फरमा दे, जो बीमार हैं उन्हें शिफाएं अता फरमा दे। या अल्लाह जो किसी भी दुख तकलीफ बीमारी मुसीबत बला बंदिश आजमाइश में फंसे और अटके हुए हैं, अल्लाह अपने करम से उनको निजात और रिहाई अता फरमा दे। जिस किसी को कोई कोर्ट कचहरी का कोई इमिग्रेशन का मामला है, अल्लाह अपने खजाना गैब से उनकी मदद अता फरमा दे। जो बेरोजगार हैं उन्हें रिज़्क़ हलाल और तैयब के बेहतरीन मौके अता फरमा दे। जिनकी नौकरियां कारोबार हैं पर वो तंग दस्त हैं, अल्लाह अपने खजाना गैब से उनकी रोजी रोटी में वुसअत अता फरमा दे, खैर और बरकत अता फरमा दे, उन्हें कामयाबियां अता फरमा दे। अल्लाह हमें बढ़ चढ़ के खैर और भलाई के कामों में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे आबाओ अजदाद में से, हमारे मशाइख असातिज़ा में से, हमारे वालिदैन में से अगर कोई दुनिया से चला गया है, उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा, कब्र की हशर की मंजिलें आसान फरमा। जो हयात हैं उन्हें ज़िंदगी तंदुरुस्ती बुलंद दर्जा अता फरमा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। या अल्लाह अपना खास करम था, जिन्होंने हमसे मोहब्बत की, हम पर शफकत की, हमारे साथ सिला रहमी बरता, अल्लाह उन्हें दुनिया व आखिरत में खैर और भलाई अता फरमा, कामयाबियां अता फरमा। जिस वली कामिल ने, जिस मर्द कलंदर ने हमें हक और सच की राह दिखाई, हमारे मुर्शद करीम के दर्जात आला तरीन फरमा, हमारे असातिज़ा के दर्जात आला तरीन फरमा, हमारे वालिदैन के दर्जात आला तरीन फरमा। हजूर मियाँ साहब मुबारक को उम्र खिजरी अता फरमा। हजूर मुबारक साहब रहमतुल्लाह ताला का फैज़ पूरी दुनिया में आम फरमा दे। इन वलियों की फीज़ो बरक़ात से सदा मुस्तफ़ीद होते रहने की तौफीक अता फरमा। इन वलियों के नक्शे कदम पर चलने की सदा तौफीक अता फरमा। जिन्होंने भी दुआओं के लिए कहा या जिनका हम पर हक है,
جو لائیو ہمارے ساتھ دعاؤں میں موجود ہیں یا بعد میں ریکارڈنگ سن رہے ہیں، اللہ سب کی دعاؤں کو، سب کی دلی حاجات کو، سب کی نیک تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے، یا اللہ قبول و مقبول فرماتے ہوئے گرانٹ عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما دے، دین و دنیا کی بھلائی، دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ الہی انت مقصودنا وردا کا مطلوبنا، آتینا محبت ذاتی کا ومعرفت صفاتک، آمین۔ صلی اللہ تعالی علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔